میں نے محسوس کیا کہ وہ شاید دروازے تک آنے کے بعد مجھے اندر آنے کی اجازت نہ تھی۔ میں نے فوری فیصلہ کیا اور کھلے دروازے میں اپنا جوتا اڑاتے ہوئے مشین پسٹل نکال کر اس کے چہرے کے سامنے کر دیا۔ حرکت مت کرنا ورنہ یہ دروازہ تمہیں گولی سے نہیں بچا سکتا۔ زنجیر ہٹا دو۔ ریٹا خاصی حسین عورت تھی اور کیوں نہ ہوتی۔ کرنل بوگارٹ جیسے صاحب اقتدار کی بیوی تھی، لیکن اس وقت اس کے حسین نقوش خوف سے مسخ ہو گئے تھے۔ اس نے کم سے کم حرکت کیے بغیر زنجیر ہٹا دی۔ میں اسے نرمی سے دھکیل کر اندر گھس گیا اور عقب میں دروازہ بند کر لیا۔ اندر اور کون ہے؟ میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ کوئی نہیں ہے، وہ بمشکل بولی۔ میں اکیلی ہوں۔ میں نے اسے خبردار کیا کہ میں کسی غلط ارادے سے نہیں آیا ہوں، لیکن اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو میں خون کی ہولی کھیلنے سے دریغ نہیں کروں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ ہولی کسے کہتے ہیں۔ خون کی برسات ہے۔ میں نے ارد گرد کا جائزہ لیتے ہوئے وضاحت کی۔ مس ریٹا، اگر تم نے میرے ساتھ تعاون کیا تو تم مجھے ایک شریف اور مہذب شخص پاؤ گی۔ میں نے پورے اپارٹمنٹ کا معائنہ کیا۔ یہ 5 بڑے کمروں پر مشتمل لگژری اپارٹمنٹ تھا جو آسائش اور عیاشی کے قیمتی سامان سے سجا تھا، مگر وہاں سچ مچ کوئی نہیں تھا۔ اس دوران میں نے ریٹا کو اپنے پاس رکھا تھا۔ مجھے خطرہ تھا کہ وہ موقع پا کر کوئی کام نہ کر دکھائے۔ آج کل پاکستان میں بھی ایسے سسٹم آ گئے ہیں کہ ان کا سرکٹ بریک ہوتے ہی تھانے یا کسی پرائیویٹ سیکیورٹی کمپنی کے دفتر میں الارم بجنے لگتا ہے۔ اگر دخل انداز بغیر الارم کو چھیڑے گھر میں داخل ہو جائے تب بھی اہل خانہ کے پاس بٹن کی سہولت ہوتی ہے جسے دبا کر وہ الارم بجا سکتے ہیں۔ مجھے یقین تھا کہ اس جگہ بھی ایسا ہی کوئی الارم ہے۔ عام طور پر اس قسم کے الارم فون لائن کی مدد سے کام کرتے ہیں اور ان کا آسان سا توڑ ہے کہ فون لائن منقطع کر دی جائے۔ اب مجھے فون لائن کا پتہ نہیں تھا، اس لیے میں نے اس مسئلے کا سادہ سا حل نکالا اور فون کا ریسیور ہٹا کر اسے انگیج کر دیا۔ اب نہ تو کال آ سکتی تھی اور نہ جا سکتی تھی۔ میں نے دیکھا فون انگیج کرتے ریٹا کے چہرے پر مایوسی چھا گئی تھی۔ گویا میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ صوفے پر آرام سے بیٹھ جاؤ مس ریٹا، میں نے اشارہ کیا۔ وہ صوفے پر بیٹھ گئی۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر کر کہا۔ وہ نہیں چاہتا جو کرنل بوگارٹ چاہتا ہے مہن صاحب۔ میرے پاس کچھ رقم اور زیور ہے، وہ تم؟ میں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، مجھے صرف کرنل بوگارٹ کا پتہ درکار ہے۔ وہ جوہانسبرگ سے باہر ہے، اس نے جواب دیا۔ جھوٹ مت بولو، ان دنوں وہ اپنی ساری مصروفیات چھوڑ کر جوہانسبرگ آیا ہوا ہے، حتیٰ کہ اس کے پاس تمہارے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ وہ ہچکچائی۔ تو تمہیں کیسے پتا چلا؟ میں مسکرایا۔ میں وہ شخص ہوں جس کی تلاش کرنل بوگارٹ کو ہے۔ یا تم نے وہ جو لڑکی والی بات کی تھی وہ غلط تھی، لیکن ممکن ہے وہ کسی عورت کے چکر میں ہو۔ ایسے لوگ کسی ایک عورت پر قناعت نہیں کرتے ہیں۔ اس نے گویا اطمینان کی سانس لی۔ وہ ہلکے نیل رنگ کے لباس میں تھی جو بمشکل اس کے گھٹنوں تک آ رہا تھا۔ وہ خاصی دلکش لگ رہی تھی۔ تو مجھے اس کے خلاف نہیں کر سکتے۔ میں ایسی کوشش نہیں کر رہا ہوں محترم خاتون، لیکن میں یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تمہیں کرنل بوگارٹ کے بارے میں علم نہیں ہے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ کسی کو اپنے بارے میں نہیں بتاتا ہے۔ مجھے بھی اس سے زیادہ نہیں بتاتا جتنا ضروری سمجھتا ہے۔ اکثر مجھے اس کی آمد کے بارے میں 1-2 گھنٹے پہلے پتا چلتا ہے، اور کبھی کبھی وہ بغیر اطلاع کے چلا آتا ہے۔ اگرچہ عقل اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن دل کہہ رہا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ پھر بھی میں نے عقل کی بات مانی۔ جذبات بعض اوقات غلط بھی دکھاتے ہیں۔ میں نے مشین پسٹل اس کی طرف سیدھا کیا۔ خاتون، میں صرف 1 منٹ انتظار کروں گا۔ اگر تم نے مجھے کرنل بوگارٹ کے بارے میں نہیں بتایا تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ اس کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ پلیز نہیں، میری بات کا یقین کرو۔ وہ گڑبڑا گئی۔ تم جیسی چاہو، میں قسم کھانے کے لیے تیار ہوں، اور مجھے مار کر تمہیں کیا ملے گا؟ اگر تمہیں اس سے فوری رابطہ کرنا ہو تو تم کیا کرتی ہو؟ وہ کسی قدر ہچکچائی، پھر فوری مشین پسٹل کی طرف دیکھ کر جلدی سے بولی، میرے پاس اس کا موبائل نمبر ہے، وہ کہیں پر بھی ہو میں اس سے رابطہ کر سکتی ہوں، لیکن وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے۔ 1-2 بار میں نے اس سے رابطہ کیا تو اس نے بعد میں میرے ساتھ سخت سلوک کیا تھا۔ وہ تم پر تشدد کرتا ہے؟ اس نے کسی قدر تلخی سے جواب دیا۔ ظاہر ہے میں اس کی زر خرید ہوں۔ اس نے مجھے عالی شان اپارٹمنٹ لے کر دیا ہے۔ زندگی کی ہر آسائش ٹھیک ہے۔ میرے بینک اکاؤنٹ میں لاکھوں رینٹس ہیں۔ میرے پاس اس کی دی ہوئی شاندار کار ہے۔ ان سب چیزوں کے بدلے اسے حق حاصل ہے کہ میرے ساتھ جو سلوک چاہے کرے۔ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوں؟ نہیں، میں خوش ہوں۔ مجھے ان سب چیزوں کی خواہش تھی، وہ میں نے حاصل کر لی۔ کرنل بوگارٹ ہر 2-3 مہینے 15 دن کے لیے میرے پاس آتا ہے، تو یہ سودا برا نہیں ہے۔ اچانک مجھے خیال آیا، تم اتنے عرصے اکیلی رہتی ہو تو کیا بوگارٹ کو تم پر پورا اعتماد ہے؟ اسے تمہاری نگرانی کے لیے کسی نہ کسی کو رکھا ہوگا۔ اس نے نفی میں جواب دیا، مجھے نہیں معلوم۔ اگر کوئی میری نگرانی کرتا بھی ہے تو مجھے نہیں معلوم۔ تم باہر جاتی ہو؟ بہت کم، ہر 3-4 دن، کبھی شاپنگ کے لیے اور کبھی تفریحاً نائٹ کلب چلی جاتی ہوں۔ لیکن ان 3 برسوں میں نے کسی اور مرد سے تعلقات نہیں بڑھائے ہیں۔
मुझे सचमुच बोगार्ड का खौफ है। वो बेरहम आदमी है। उसे यकीन आ गया कि मैंने किसी और से ताल्लुक इस्तवार नहीं किए। अगर मैंने ऐसा किया तो वो मेरी खाल उतार देगा। उसने मुझे आगाज ही में इसकी धमकी दी थी। वो बोलते बोलते लर्ज गई थी और उसकी जिल्द का रंग जर्द पड़ने लगा था। उसने तुम्हें किस तरह धमकी दी थी? उसने मुझे एक वीडियो दिखाई जिसमें एक स्याफाम लड़की की खाल उतारी जा रही थी। वो जिंदा थी और खाल उतारने के दौरान वो बुरी तरह सिसक तड़प रही थी। उसे याद करके आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब मेरे जज्बात बेकाबू होने लगते हैं तो मैं इस लड़की की हालत का सोच लेती हूँ, फिर सारे जज्बात ठंडे पड़ जाते हैं। इस लड़की का कसूर इतना था कि उसने बोगार्ड का कुर्ब हासिल किया और फिर किसी और के पास चली गई थी। बोगार्ड जैसे जनूनी से इसकी तवक्का की जा सकती है, मैंने सोचकर कहा। मेरे हाल तुम उसे फोन करो और उसे यहाँ आने की फरमाइश करो। क्या? उसकी आंखें फैल गई। नहीं नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? वो गजबनाक हो जाएगा, बाद में मुझे मारेगा। मिस रीटा, मार खाना मरने के मुकाबले में बेहतर है। वो चौंकी। प्लीज, क्या तुम मुझे मार दोगे? मैं हंसा। मिस रीटा, गालिबन तुम मेरी शरीफाना सूरत से धोखा खा रही हो। क्या मैंने तुमसे अभी तक कोई बुरा सलूक नहीं किया है, इसलिए तुम शायद मेरे बारे में गलत फहमी में मुब्तला हो गई हो। मिस रीटा, तुम्हें गोली मार कर भी इसी तरह मैं पुरसकून रह सकता हूँ। गुज़िश्ता 1 महीने में कम से कम 1 दर्जन अफराद मेरे हाथ से मारे जा चुके हैं। प्लीज मुझे इस मामले में मुलव्विस ना करो, वो रोहानसी होगी। मैंने मशीन पिस्टल रखकर कमर से लगा पिस्तौल निकाल लिया। मिस रीटा, अब तुम फैसला कर लो, हाँ या नहीं। उसने मेरे चेहरे से अंदाजा लगा लिया कि मैं अपने फैसले में पुख्ता हूं। उसने सर हिलाया। ओके, गोली मत चलाना। मैं तैयार हूं, लेकिन इस बात की जमानत नहीं दे सकती कि वो आएगा या नहीं, क्योंकि उससे पहले मैंने उसे जब फोन किया तो उसका मूड खराब हो गया था। तुम अपनी सी कोशिश करो और कोई गलती या इशारा मत करना, ये गुफ्तगू मैं भी सुनूंगा। उसने फोन का रिसीवर रखा और फिर उसे उठाकर नंबर मिलाने लगी। नंबर मिलते ही मैंने स्पीकर फोन का बटन दबा दिया था। दूसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली गई और मैंने कर्नल बोगार्ड की ओर राती हुई आवाज सुनी। रीटा, क्या बात है, क्यों फोन किया है? मैं अकेली हूं, बोर होती हूं, तुमसे बात करना चाहती हूं, रीटा ने नाज भरी आवाज में कहा। मुझे पता था कि तुम नाराज होगे, जब आओगे तो मुझे मारोगे, लेकिन मैं अकेली नहीं रह सकती। तुम्हारी मार भी मेरे लिए इस तन्हाई से बेहतर है। औरत वाकई ऐसी चीज होती है कि हीरा भी इसके आगे नर्म पड़ जाए। तुम फिक्र ना करो। इस बार बोगार्ड की आवाज नर्म पड़ गई थी। मैं एक काम में उलझा हुआ हूं, इससे निमटते ही तुम्हारे पास आऊंगा। तुम जोहान्सबर्ग में हो? कर्नल बोगार्ड चौंका था। तुम्हें कैसे मालूम? बस मुझे एहसास है। इन दिनों जोहान्सबर्ग में हंगामे ज्यादा हो रहे हैं और तुम्हारा ताल्लुक सिक्योरिटी से है, इसलिए मुझे ख्याल आया था कि तुम भी यहाँ होगे। हाँ, मैं यहाँ हूँ, लेकिन गैर सरकारी तौर पर, इसलिए मैं खुलेआम तुमसे मिलने नहीं आ सकता। अच्छा, मैं तो तुम्हारे पास आ सकती हूँ ना? रीटा ने इल्तिजा की। सिर्फ थोड़ी देर के लिए, फिर मैं वापस चली जाऊंगी। रीटा के लहजे में मौजूद लोच ने कर्नल बोगार्ड को मजीद नर्म कर दिया था। ओके, मैं देखता हूं, मैं किसी आदमी को भेजूंगा तो तुम उसके साथ आ जाना। सच? रीटा ने खिलने का तासुर दिया, लेकिन ना जाने क्यों उसकी आंखों से मुझे लगा जैसे वो मायूस हुई है। तुम यहां नहीं आ सकते? मैंने सोचा था तुम्हारे लिए खुद खाना बनाऊंगी, फिर हमारा बेडरूम होगा। नहीं, मैंने कहा ना, मैंने अपनी आमद खुफिया रखी है और तुम्हारी तरफ आया तो कोई ना कोई तुम्हें देख लेगा। तुम्हारा आदमी कब आएगा? इसके आने से कम 2 घंटे पहले मुझे पता चलना चाहिए। मैंने तैयार भी होना होगा। उसकी खास जरूरत नहीं है। जब मेरा आदमी आएगा तो वो कुछ देर रुक जाएगा और फिर तुम उसके साथ चली आना। ये क्या बात हुई? मैं सो रही हुई या नहा रही हुई तो? रीटा ने झुंझला कर कहा। बेबी, मैंने नहीं, तुमने मिलने की ख्वाहिश की है, उसने सर लहजे में कहा और फोन बंद कर दिया। इसने मेरी तरफ देखा। मैंने सर हिलाया। तुमने अच्छी तरह हैंडल किया है। वो शायद यहाँ आता भी नहीं। तुम्हारे इरादे क्या हैं? मैं बोगार्ड से कुछ हिसाब किताब साफ करना चाहता हूँ, मैंने गोल मोल से अंदाज में कहा। तुम उसकी जान लेना चाहते हो? तुम्हें यह ख्याल क्यों आया? क्योंकि बोगार्ड जिस मकाम पर है, इससे कोई पुराना हिसाब नहीं ले सकता। हाँ, इसे कत्ल कर सकता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है। तुम अक्लमंद औरत हो और होना भी चाहिए। जिस औरत ने बोगार्ड जैसे आदमी को काबू कर रखा है, इसे बेवकूफ नहीं कहा जा सकता है। ये दुरुस्त है कि मेरे दिल में बोगार्ड के लिए इतनी आग है जो सिर्फ उसके खून ही से सर्द हो सकती है। मुमकिन है मैं उससे कत्ल कर दूं या फिर उसके हाथों मारा जाऊं। मैं तुमसे इसकी वजह नहीं पूछूंगी। बोगार्ड जालिम आदमी है। हजारों अफराद उससे इतनी नफरत करते हैं कि अगर इन्हें मौका मिल जाए तो वो इसे कत्ल करते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इस मुल्क के सरबराह से कहीं ज्यादा हिफाजत कर्नल बोगार्ड की जाती है। वो इस मुल्क में नस्ल परस्त सफेद फामों की आखिरी उम्मीद भी है। वो इन्हें दोबारा इक़्तिदार दिला सकता है। हैरत है, सफेद फाम अब भी इस फिक्र में है। रीटा ने सर हिलाया। इसकी खुशकिस्मती है कि स्याह फाम की आदत ने दुनिया की नजर में
अच्छा बनने के लिए सफ़ेद फाहमों से ना तो कुछ छीना है और ना ही इन्होंने सफ़ेद फाहमों से इनके जराइम का हिसाब तलब किया। इसी मुआफ़ी से बोगाड़ जैसे लोगों को फ़ायदा हुआ जिन्होंने अपने दौर में स्याह फाहमों पर बेपनाह मजालम ठाए थे। इससे नस्ल परस्तों को हौसला मिला और उन्होंने इस मुल्क पर फिर से इक़्तिदार का सोचना शुरू कर दिया है। लगता है तुम सफ़ेद फाहमों की इक़्तिदार की हामी नहीं हो। हाँ, क्योंकि मेरी माँ एक रंगदार औरत थी, इसका बाप स्याह फाहम और माँ सफ़ेद फाहम थी। इस जुर्म इन दोनों को जंगल में जानवरों की तरह दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। मेरी माँ ने एक यतीम खाने में परवरिश पाई। उसने भी माँ बाप वाली गलती की थी। इसने एक सफ़ेद फाहम से मोहब्बत की शादी की और दोनों मुआशरे में धुतकार दिए गए। मेरा बाप डॉक्टर था, इसे नौकरी से जवाब दे दिया गया। मजबूरन उसे एक चैरिटी अस्पताल में मामूली तनख्वाह पर नौकरी करना पड़ी थी। मेरी माँ को कैंसर हो गया तो वो डॉक्टर होने के बावजूद इसका इलाज नहीं करा सका था। वो सिसक सिसक कर मर गई। मैं इस तरह की नफरत अंगेज जिंदगी नहीं गुजारना चाहती थी। गोरों ने हमें धुतकार दिया था, काले भी हमें मुंह लगाने के लिए तैयार नहीं थे। हम गरीबों की एक बस्ती में रहते थे। यहाँ पर हर फर्द दूसरे से लाताल्लुक था। खुशकिस्मती से मेरी रंगत, आंखें और बाल सफ़ेद फाहमों जैसे थे, इसलिए जब मैंने जोहान्सबर्ग में आकर रहाइश इख्तियार की तो किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ कि मेरी रगों में गैर सफ़ेद फाहम खून भी है। मुझे भी अभी तक शक नहीं हुआ, मैंने एतराफ़ किया। अब तुम क्या करोगे? कर्नल बोगाड़ के आदमी का इंतज़ार, मैंने जवाब दिया। इसके साथ नहीं बल्कि तुम मेरे साथ कर्नल बोगाड़ के पास जाओगी। प्लीज़, तुम समझ नहीं रहे हो। कर्नल बोगाड़ अकेला नहीं होता कि तुम जाओ और उसे मार दो। इसके दर्जनों ज़ाती मुहाफ़िज़ हैं। उसके अलावा वो जहाँ होगा वो जगह भी बहुत महफूज होगी। कर्नल बोगाड़ जालिम ही नहीं, बुज़दिल भी है। इसे अपनी जान सबसे प्यारी है। हर जालिम शख्स बुज़दिल होता है और इससे अपनी जान प्यारी होती है, लेकिन इसे एक न एक दिन जान देनी ही पड़ती है। तुम अकेले उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकोगे। मिस रीटा, मुझे खौफज़दा मत करो। जान मुझे भी प्यारी है और मैं कर्नल बोगाड़ को खुदकुशी करके नहीं मारूंगा। अगर मुझे लगा कि मैं उसे आसानी से नहीं मार सकता तो मैं पीछे हट जाऊंगा। उसने शक से मुझे देखा। तुम सच कह रहे हो ना? मैं इसलिए कह रही हूं कि मैंने 2 अफराद को बोगाड़ को कत्ल करने की कोशिश में मरते देखा है। एक बार तो मुझे बोगाड़ के साथ अपनी मौत का भी यकीन आ गया था। हम समंदर के किनारे सन बात ले रहे थे। कोई शख्स गोताखोरों वाले लिबास में समंदर से निकला और एक छोटी तलवार लहराता हमारी तरफ दौड़ा। इस वक्त दूर दूर तक बोगाड़ का कोई मुहाफिज नजर नहीं आ रहा था, मगर बोगाड़ सुकून से तौलिए में लिपटा इसे पास आते देख रहा था। मैंने उसे झंझोड़ा, खुदा के लिए कुछ करो, ये पागल लग रहा है। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा, उसने इत्मीनान से जवाब दिया। हमले के लिए आने वाला स्याफाम हमसे कोई 10 फुट दूर था कि अचानक ना जाने कहां से गोली चली और वो लड़खड़ा कर मुंह के बल गिरा। और फिर मैंने उठकर चारों तरफ देखा था, लेकिन हमलावर को मारने वाला मुझे कहीं नजर नहीं आया था। बोगाड़ के मुहाफिज ऐसे ही हैं, और तुम यकीन करो जब तक हम वहां रहे हमलावर की लाश भी पड़ी रही। मैंने बोगाड़ से चलने या लाश उठाने को कहा तो उसने जवाब दिया कि तफरीह का सही लुत्फ अब आ रहा है। वो इसी किस्म का आदमी है, मैंने सर हिलाकर कहा। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम उस तक रसाई भी हासिल कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। वो इतना कलाबंद होता है कि कोई चूंटी भी उसके आदमियों की निगाह से छुप कर उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकती। गुड़िया, ये सब बात की बातें हैं, मैंने उकता कर कहा। ये बताओ कि इस फ्लैट में तुम्हारे अलावा और कौन रहता है? गलत मत बोलना, कोई भी नहीं, मैं अकेली हूँ। सिक्योरिटी की जरूरत मुझे कभी महसूस नहीं हुई। हालांकि तुम कर्नल बोगाड़ जैसे शख्स की महबूबा हो जिसके लातादाद दुश्मन है। मुझे हैरत है कि इसने तुम्हें इस तरह गैर महफूज छोड़ा है। उसे परवाह सिर्फ अपनी जात की है, लेकिन एक बार उसने मुझसे कहा था कि मुझे किसी से खौफ खाने की जरूरत नहीं है, वो मेरी हिफाजत करेगा। गालबन यहाँ पर अलार्म सिस्टम है, अगर कोई जबरदस्ती अंदर घुसे तो एक बटन दबाने से कहीं अलार्म बजने लगेगा। उसने इस बात में सर हिला दिया। इस किस्म का सिस्टम है, लेकिन तुमने फोन एंगेज करके इसे नाकारा कर दिया। चालाक आदमी। उसकी अपनाहियत भर लहजे पर मेरे अंदर घंटी बजने लगी। वो मुझसे बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रही थी और अभी मुझे शायद 1-2 दिन इस जगह रहना था। पहले मैंने सख्त होने का सोचा, लेकिन यह सोचकर फैसला मुलतवी कर दिया कि अगर वो सचमुच मेरे लिए नरम गोशा रख रही थी तो मेरे रवैये से बिदक जाती। मिस रीटा, मैं एक बार फिर खबरदार कर रहा हूं कि मेरे साथ किसी चालाकी का मतलब नागहानी वफात भी हो सकता है। मुझे धमकियां मत दो, मैं तुमसे पूरा ताउन कर रही हूं, पर न मेरे लिए बोगाड़ को मुतल्ला करना मुश्किल नहीं है। क्या मतलब? मैं चौंका। मतलब ये कि उसने सोफे का कुशन हटाकर नीचे से एक छोटा सा और जदीद तरीन मोबाइल फोन निकाला। बस इसका एक बटन दबाने की देर होती और हमारी यहां होने वाली गुफ्तगू का एक एक लफ्ज नशर हो जाता। मैंने मोबाइल फोन लेकर उसका मुआयना किया। मुमकिन है तुम निकाल कर दियो। तुम बहुत शक्की मिजाज शख्स हो, वो झुंझला की। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ।
बात यह है मिस रीटा कि मैंने अपनी जान दाव पर लगाकर तुम तक रसाई हासिल की है, और ऐसे शख्स को किसी पर भी शक करने का हक होता है। क्या यह मुमकिन नहीं है कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में कर्नल बोगार्ड ने इस फ्लैट में कुछ ऐसे इंतजामात करा दिए हों कि तुम्हारी बेखबरी में वो तुम पर नजर रखे हुए हो? रीटा का चेहरा गुलाबी से सफेद पड़ गया था। उसने हकला कर कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता मिस रीटा? उसने कुछ ना कुछ तो इंतजाम किया होगा, वरना क्या उसे इल्हाम होगा कि तुम पर कोई उफ्ताद आन पड़ी है? वो उसने मुझे तसल्ली दी थी। रीटा का लहजा खोखला था, फिर वो गड़बड़ा गई। प्लीज ऐसी बात ना करो कि दहशत से मेरा दम निकल जाए। तुम अभी भी नहीं जानते कि वो किस कदर सफाक शख्स है। उसे मेरे बारे में जरा सा भी शुबा हो गया तो वो मुझे उधेड़ कर रख देगा। मैंने तुमसे जो बातें की, अगर वो कर्नल बोगार्ड तक पहुंच गई हैं तो मुझे इबरतनाक अंजाम के लिए तैयार होना चाहिए। डरो मत, मैंने सिर्फ एक इम्कान जाहिर किया था। मुमकिन है ये महज खदशा हो, वरना अब तक कोई न कोई आ चुका होता। मैंने उसे तसल्ली दी। उसने सुकून का सांस लिया। हाँ ये तो है, प्लीज अब मजाक में भी मुझसे ऐसी खौफनाक बात मत करना। मैं गौर कर रहा था कि अगर मुझे चंद दिन यहाँ रुकना पड़ता तो मुझे किन एहतियाती तदाबीर पर अमल करना पड़ता। मैंने उससे कहा, मुझे पूरा घर दिखाओ, कुछ छुपाने की कोशिश मत करना। उसने खासी नागवारी से मुझे घर दिखाया। उसने रजाकाराना तौर पर वो नन्ना सा पिस्तौल भी मेरे हवाले कर दिया जो उसने बेड की साइड दराज में रखा था। आज तक इसे चलाने का इत्तेफाक नहीं हुआ और ना ही उम्मीद है कि मैं इसे किसी इंसान पर फायर करूंगी, चाहे वो कर्नल बोगार्ड ही क्यों ना हो। मैंने पिस्तौल अनलोड करके एक तरफ रख दिया। आखिर में वो मुझे किचन में लेकर आई और बेहद तंजिया अंदाज में बोली, अब कहो तो यहाँ की कैबिनेट्स भी खोल कर दिखा दूं? मैं भी यही कहने वाला था, मैंने संजीदगी से जवाब दिया। मुझे शिद्दत की भूख लग रही है। वो जो बनाकर सचमुच कैबिनेट्स खोलने जा रही थी खिलखिलाकर हंस पड़ी। भूख मुझे भी लग रही है। मैंने सुबह सिर्फ एक कॉफी ली थी। क्या खाओगे? अगर मछली है तो वरना एक सैंडविच बना दो। मैं गोश्त नहीं खाऊंगा और ना ही मैं दूध या इससे बनी कोई शय इस्तेमाल करूंगा। यानी तुम्हें पोर्क से परहेज है? वो शरारत से मुस्कुराई। कहीं तुम यहूदी या मुसलमान तो नहीं हो? वही सुअर नहीं खाते हैं। मुसलमान हूं। मैं किचन की एक तरफ टेरेस के साथ रखी मेज पर टिक गया। स्लाइडिंग डोर हटाने पर यह खुला हुआ टेरेस बन जाता। रीटा ने फ्रिज से मछली और गालबन अपने लिए गाय के गोश्त के पार्चे निकाले। मछली और गोश्त के टुकड़े फ्राई करने के लिए रखकर उसने डबल रोटी निकाली। फिर कुछ ही देर में हम खाने की टेबल पर थे। ये खाओ जब तक मैं मछली और गोश्त फ्राई कर लूं। शुक्रिया। हमने सुकून से अपना अपना खाना खत्म किया। दुबली जिसामत और शरीरे जिस्म से कताए नजर उसकी खुराक अच्छी खासी थी। उसने लंच में कोई 1 पाउंड गोश्त और 4 अदद सैंडविचेस खाए थे। खाने के बाद मैंने बर्तन समेटने में उसकी मदद की और जब तक उसने बर्तन धोए मैंने ताज़ा कॉफ़ी बनाई। कॉफ़ी लेकर हम लाउंज में वापस आ गए। अगरचे रीटा ने टेरेस में बैठने पर इसरार किया, लेकिन मैं किसी ऐसी जगह जाने के लिए तैयार नहीं था जो दूर से सही लेकिन बाहर से नजर आ जाए। रीटा को मेरी बात मानना पड़ी थी। मैंने लाउंज में रखा टीवी चला दिया और मकामी खबरें दिखाने वाला चैनल लगा दिया। हस्ब तवक्का चैनल से जॉनी वाल्टर के मर्डर की रिपोर्ट पेश की जा रही थी। पुलिस ने मलबे से इसके पोते की लाश भी तलाश कर ली थी। अलबत्ता इनके पास से मिलने वाले असलहे की तफसील गोल कर दी गई थी। रिपोर्टर ने सिर्फ इतना बताया कि जाए वकुआ से कुछ असलहा भी मिला था। इसी तरह कैबन तले मौजूद कुएं और इसमें मौजूद 2 अदद ताज़ा लाशों का कोई जिक्र नहीं था। यानी यहूदी अपने ज़राए बरोकार लाकर इन सब बातों को छुपाने में कामयाब रहे थे। कहानी कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि जॉनी वाल्टर और उसका पोता इस कैबन तक गए थे। ये कैबन इनकी तफरीक का भी था। यहाँ पर नामालूम अफराद ने हमला करके इन्हें कत्ल कर दिया। शुबा जाहिर किया जा रहा था कि यह हमला भी इस कत्लो गारतगिरी की एक कड़ी है जो गुज़िश्ता चंद हफ्ते से जोहान्सबर्ग में जारी थी, और इसका मरकजी किरदार जोसेफ नामी शख्स था जो गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करके जनूबी अफ्रीका में दाखिल हुआ था। इसके बारे में यह भी शुबा था कि वो दर हकीकत मुसलमान है और अपनी शनाख्त छुपाकर दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में मसरूफ है। ये तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं? रीटा ने अचानक पूछा। जाहिर है, मेरे लहजे में बेसाख्ता तलखी आ गई थी। आजकल के दौर में मुसलमान और दहशतगर्दी हम मानी होकर रह गए हैं। मगरबी दुनिया का रवैया है, अगर आप मुसलमान हैं तो आपका दहशतगर्द होना अहन करीने कयास है। लेकिन सब ऐसा नहीं समझते। उसने गोया जल्दी से सफाई पेश की। मैं ऐसा नहीं समझती। मैं तुम्हारी आम लोगों की तरफ इशारा कर भी नहीं रहा हूं। मेरी मुराद एक खास तबके से है जो मगरिब की सियासत, क़यादत, फौज और मीडिया पर छाया हुआ है। ये लोग मुसलमानों को अपना हरीफ करार दे चुके हैं और अवाम को भी ये बावर करवा रहे हैं, लेकिन अक्सर लोग इस पर यकीन नहीं करते हैं। रीटा ने मुझे तसल्ली थी। हम तालीम याफ्ताएं और शौर रखते हैं, मगर इस तबके ने हमें भी जकड़ रखा है। हमें रोजगार और आसाइशों के हसूल के न खत्म होने वाले चक्कर में डाल दिया है। हम भी बस हैं।
इस निज़ाम से फरार होकर कहीं जा भी नहीं सकते, इसलिए मजबूरन इसके तहत जिंदगी बसर कर रहे हैं। मैंने सोचकर कहा, मुझे तुम्हारी बात से इत्तिफाक है और इन लोगों को सबसे बड़ा खतरा यही है कि इस्लाम कहीं एक बेहतर मुतबादल निज़ाम के तौर पर सामने ना जाए, इसलिए इसकी तालीमात और खूबियों को मसख करके खास तौर से मगरिब के आवाम के सामने पेश करते हैं। मुसलमानों को दहशतगर्द करार देते हैं ताकि मगरिब के आवाम इस मजहब और इसके मानने वालों से मुतनफ़र हो जाएं और इसकी तरफ तवज्जो न दें। यहाँ मुझे तुमसे इत्तिफाक है, रीटा बोली, लेकिन साथ ही मैंने ये महसूस किया है कि मुसलमानों की जानिब से इस तासुर की तरदीद की इतनी कोशिश नहीं की जा रही है जितनी इसकी ज़रूरत है। इसकी वजह यह है कि मीडिया भी मगरिब के कब्ज़े में है। वो मुसलमानों की वजाहत को या तो जगह नहीं देते हैं या देते हैं तो इसे तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। मुसलमान अपना मीडिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हाँ, लेकिन इसके साथ वही सलूक होगा जो अफगानिस्तान में अल जजीरा टीवी के दफ्तर के साथ हुआ, यानी इसे स्मार्ट बमों से तबाह कर दिया। एक सहाफ़ी के साथ नारवा सलूक पर मगरिबी मीडिया आसमान सर पर उठा लेता है। इंसानी हकूक़ की इस खुली खिलाफवर्जी पर कहीं से आवाज़ नहीं उठी। बात यह है कि मुसलमानों या इनके इदारों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है तब भी मगरिब इसे जायज़ समझता है। यही रवैया इन अक़वाम के दरमियान खलीज बढ़ा देता है। मैं जोश से बोलते बोलते यकदम खामोश हो गया, फिर खज्जल होकर उसे देखा। माफ़ करना, मैं भूल गया था, यह सब तुम्हें कहना बेकार है।